Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Just go through the content which already discussed in the first lecture of mole concept. Then we'll proceed further. Mole concept में सबसे पहला पॉइंट है मोल. मोल क्या है? केमिकल काउंटिंग ऐसा यूनिट है. Similar to what? Your dozen. Mole is what? A mole is the amount in number of a substance that contains as many entities, atoms, molecules, ions, or other particles, as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon. तो जितने एटम्स कार्बन में होंगे, 12 ग्राम कार्बन में होंगे, उतने ही नंबर को ही हम एक 1 मोल कहते हैं. अ मोल लिखा है. From mass spectrometer, it was found that there are 6.022 into 10.23 atoms of carbon present in 12 gram of carbon isotope. What is the meaning of isotope? Isotope means same atomic number but different mass number. We'll discuss that. From above two statement, दो सेंटेंस लिखा हमने कि 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स होते हैं और अ मोल क्या होती है? सेम नंबर जो 12 ग्राम में हो. तो बेसिकली 1 मोल की वैल्यू क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10.23 entities. The number of entities in 1 mole is so important that it has got a special name. इसको हम क्या बोल देते हैं? Avogadro's number बोल देते हैं. और डिनोट क्या करते हैं? N से डिनोट कर लेते हैं. In another way, you can write 1 mole is equal to what? 6.022 into 10.23 structural units, atoms, molecules, ions. इस फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं. What is atom? Smallest unit. Smallest particle of element. What is molecule? Smallest particle of compound. What is ion? Smallest particle of Radical. radicals or charged species. तो इस टर्म में डिनोट कर लेते हैं. तो if I say 1 mole atoms, तो Na atoms. If I say 1 mole molecules, Na molecules. If I say 1 mole ions, Na ions. अब देखिए जो ऊपर इंफॉर्मेशन मिला, what is the information basically given there? कि 12 ग्राम कार्बन has this number of atoms. So we can also write gram carbon contains 6.022 into 10.23 carbon atoms. Mass of 6.022 into 10.23 carbon atoms is 12 gram. Or we can say mass of Na atoms, Na carbon atoms is 12 gram. Mass of 1 mole carbon atoms is 12 gram. Mass of 1 mole is known as what? Molecular mass. नहीं, molar mass. Molar mass of carbon क्या हो जाएगा फिर? 12 ग्राम. Mass of 1 mole is known as molar mass, because molecular mass is used for compounds, but molar mass can be used for anything. Because mass of 1 mole तो किसी का भी हो सकता है ना, एप्पल, मैंगो, स्वीट्स, कुछ भी हो सकता है. Mass of 1 mole is known as what? Molar mass. अब वो 1 mole एटम का होगा
मॉलिक्यूल का होगा, रेडिकल्स का होगा, किसका होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सब पढ़ाया हुआ आपको, तो ये भी पढ़ाया गया है। फाइंड द मास ऑफ वन कार्बन आटम इन ग्राम। मास ऑफ दिस आटम्स इज 12 ग्राम और मास ऑफ Na आटम्स इज 12 ग्राम। तो मास ऑफ वन कार्बन आटम क्या होगा, 12 अपॉन Na हो जाएगा। So 12 upon Na will be equal to 1.9926 into 10 power 23 minus 23 ग्राम। ये कराया चुका है बेटा, करा चुके हैं ना ये क्लास में ऑलरेडी, Yes, sir. पूरा करा चुके हैं। फाइंड sir. 1/12 सब जो बहुत पहले कराया था, थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड 1/12 मास ऑफ वन कार्बन आटम। तो 1/12 मास ऑफ वन कार्बन आटम इज व्हाट, डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो 12 12 कैंसिल, 1 अपॉन Na ग्राम। 1 अपॉन Na ग्राम क्या होती है, 1.66 into 10 power - 24 ग्राम। और डेफिनेशन दिया था मैंने, डेफिनेशन ऑफ यू, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, डाल्टन। डाल्टन को शायद DA से डिनोट करते हैं। So 1U is what? 1/12 mass of one carbon atom. 1.66 into 10 power - 24 ग्राम। kg में क्या हो जाएगा, यही 1000 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 27 ग्राम। अब देखिए 1U 1/Na ग्राम है, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, NaU। यूनिट कन्वर्जन हो गई, दिस इज फॉर व्हाट, यूनिट कन्वर्जन। One U equal to 1 upon Na gram, 1U equal to 1.66 into 10 power - 24 ग्राम। कन्वर्ट योर मास इन टर्म्स ऑफ यू, ये कराया था मैंने आपको। तो 50 kg अगर मैंने मास अज्यूम कर लिया, इट इज 50 into 1 kg, 50 into 1000 ग्राम, 50,000 ग्राम। और 50,000 ग्राम को हमने क्या लिखा, इंटू 1 ग्राम, और 1 ग्राम क्या था, NaU। और Na की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको कुछ और वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू। तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू 3.011 into 10 power 28 U हो गया। तो U इज अ स्मॉलर यूनिट, kg is unit of mass, gram is unit of mass, U is also unit of mass, is used for mass of very small particles. साइंटिफिक नोटेशन बताया था मैंने करने के लिए कि A.BC के फॉर्म में लिखते हैं जब वैल्यू बहुत छोटी या बड़ी होगी। डेसिमल के पहले जो डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा, 1 to 9 लिखते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास का हम डेफिनेशन लिखने के लिए कहे थे, मैंने यहाँ लिख दिया है डेफिनेशन। Relative atomic mass of an element or atomic mass of an element is nothing but mass of one atom of element upon 1/12 mass of one carbon atom. ठीक है, relative atomic mass क्या है, mass of one atom of element upon 1/12 mass of one carbon atom. It's a ratio of two mass. If it is a ratio of two mass, it will be unitless. Relative atomic mass, it's a comparison, it's a value relative to the 1/12 mass of one carbon atom. But we already got the value of 1/12 mass of one carbon atom, that is 1U. तो हमने लिख दिया। Can be defined as the number, एक number होता है which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1/12 mass of one carbon atom. अब उसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मास ऑफ वन एटम एलिमेंट क्या हो जाएगा, RAM ऑफ एलिमेंट इनटू द 1U। RAM of element into 1 upon Na gram, RM of element into 10. एक क्वेश्चन क्लास में करवाया था आपको, याद है? Yes, Yes, sir. sir. तो डायरेक्टली आप वैल्यू बताइए, तो चेक कर लीजिए एक बार। मास ऑफ वन हीलियम एटम इज फाउंड टू बी 6.64। तो रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है, तो किससे डिवाइड कर देंगे आप, 1U से डिवाइड कर लेंगे। और 1U की वैल्यू क्या थी, kg में दिया था उन्होंने, तो 1U की वैल्यू kg में क्या होती है, 1.66 into 10 power - 27 kg. So the value will be 6.64 into 10 power - 27 upon 1.66 into 10 power - 27, because दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। Yes, sir. तो 4 आ गया। तो मास ऑफ वन हीलियम एटम क्या होगा, RAM ऑफ एलिमेंट इंटू 1U, तो 4U हो गया। ग्राम में क्या होगा,
इंटू 1.66 इंटू 10^24 ग्राम हो जाएगा। हीलियम ग्राम में लिखा है। मास ऑफ एन आइटम्स क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ 1 निकाल लिया हमने, इंटू एन करिएगा तो 4 ग्राम आ गया। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स क्या होगा? सेम ही होगा। मोलर मास ऑफ हीलियम क्या होगा? 4 ग्राम, बिकॉज 1 मोल का ही नाम क्या होता है? मोलर मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास भी क्या होता है? 4 ग्राम होता है। ग्राम एटॉमिक मास भी क्या होती है? 4 ग्राम होती है। डिटेल्स को यहाँ लिखा हुआ है। मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। इट कैन बी यूज्ड फॉर एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल्स, किसी के लिए भी हो सकता है। एनी यूनिट कैन बी यूज्ड फॉर मोलर मास, बट मोस्टली ग्राम्स इज यूज्ड फॉर मोलर मास। नाउ ग्राम एटॉमिक मास, this is used for elements only. The mass of 1 mole of an element expressed in grams is called gram atomic mass of that element. तो बेसिकली मोलर मास ऑफ एलिमेंट और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। इनको कोई काम धाम नहीं है, एक ही चीज को 10 बार लिखते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। अब गौर करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया तो आपने सब निकाल लिया। या रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है तो आपको सब पता है, सिर्फ यूनिट का खेल है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम का पता है मुझे 4, तो एटॉमिक मास भी क्या होगी? 4। मास ऑफ वन एटम भी क्या होगी? 4, बट न्यूमेरिकली 4 होगी। यूनिट क्या होगा? यू। मास ऑफ 1 मोल क्या होगी? 4, बट यूनिट क्या होगा? ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 4। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो देखिए मैंने मेंशन किया आर एम, ए एम, मास ऑफ वन एटम, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास, ऑल आर हैविंग सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज। Using above problem on helium, we can conclude that if RAM of an element is known, we can easily get the values of atomic mass of element, mass of one atom of element, molar mass of element, gram atomic mass of element. Question देखिए, find gram atomic mass and molar mass of carbon. So 12 gram of carbon contains 1 mole. What is mass of 1 mole of carbon? 12 gram. तो मोलर मास ऑफ कार्बन भी क्या हो गया? 12 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास भी क्या हो गया? 12 ग्राम। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो भी क्या हो जाएगा? 12। सिंपल है। Yes, sir. ठीक है। अब देखो मैंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास दिए हुए हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी यूज करने के लिए, तो आप सॉल्विंग के टाइम पे यूज करना। देखिए हीलियम 1, हाँ सर बताओ। आपने क्वेश्चन सपोज यू आर हैविंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीस, उसका आंसर नहीं। तो वही है, डिवाइड कर लेनी है ना टाइम से, है ना? या मल्टीप्लाई करनी थी, कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन शायद, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ करना था। तो सर बेसिक आपने यूनिट, वो फॉर्मूला सब इसका बताया था ईयर्स में वगैरह, हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना हाँ वही वही कुछ था, मैं डिस्कशन कर दिया था शायद। ठीक है। तो देखिए अगर अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो ऑलमोस्ट सब कुछ एलिमेंट के बारे में आप बता सकते हैं। नहीं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 0.24 ग्राम ऑफ कार्बन। ये 3 क्वेश्चन करिए फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं दिया है। बताइए, ये सॉल्व करिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए।
सब तीनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करिए। 200 200 कैसे? नहीं, तो 0.02 0.02। क्या सर 0.02? हाँ, सर सेकेंड का आंसर 10⁻⁻20। बिल्कुल सही। सर थर्ड का आंसर 12 into 10⁻⁻20। हाँ सही है बिल्कुल। तो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट बेटा। फर्स्ट का देखिए, हमारे पास कोई फॉर्मूला फिलहाल तक तो नहीं है मोल्स निकालने के, बट हम लोग एनालिसिस करके निकालेंगे। तो हमें पता है 12 ग्राम कार्बन contains what? 1 mole, 1 mole atoms ना? Yes, sir. Yes. 1 ग्राम कार्बन कंटेन्स क्या हो जाएगा? राइट अपॉन लेफ्ट। तो राइट में 1 वैल्यू है, लेफ्ट में 12 है, तो 1/12 मोल्स। इफ आई से हमने कितना दिया 0.24 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 0.24 इंटू 1/12। इफ आई चेंज द वैल्यू टू x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, पर जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज होगा क्या बताओ? नो सर। नहीं, वो तो चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली इफ आई वांट टू राइट, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स, जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, मास ऑफ सैंपल या मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल अपॉन क्या हो जाएगा? Molar mass. ये किस में लोगे? ग्राम में। ये भी किस में लोगे? ग्राम में लोगे, है ना? और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, फॉर सेम ही होगा, कुछ अलग तो नहीं होने वाला। यस सर। फॉर एलिमेंट अगर मैं लिखूं, या मैं पहले एलिमेंट का लिख लेता हूँ बेटा, फिर जनरलाइज करते हैं, क्योंकि मोल्स तो किसी का भी हो सकता है। तो फॉर एलिमेंट number of moles will be equal to mass of element upon molar mass of element।
बट हाँ हाँ, हमारे पास एक रिजल्ट है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट के लिए हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं? एटॉमिक नहीं, एटॉमिक मास कभी नहीं बोलते बेटा। एटॉमिक मास लिखोगे तो गलत नहीं होगा, सब 9th में गलत पढ़ते हैं आप लोग, कहीं भी कुछ भी लिखा रहता है बुक में। ये किस में होता है? ग्राम में। एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू और ग्राम एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही रहती है, तो गलत तो नहीं होगा डेफिनेटली, सॉल्विंग करेंगे तो, पर कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा वो। ठीक है। यस अब इन जनरल फॉर एनी स्पीशीज क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सबके लिए यूज कर सकते हैं, सभी के लिए, कंपाउंड के लिए, एलिमेंट के लिए। कंपाउंड का मोलर मास पता होगा तो उसमें मोलर मास किसका होगा? मास ऑफ 1 मोल का होगा। मास ऑफ 1 मोल एटम का होगा या मॉलिक्यूल का होगा? कंपाउंड रहेगा तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स का रहेगा। ठीक है, डन। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन दिया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6022 एटम्स। नाउ 1 मोल हमने लिखा था, देखिए यहाँ पे 1 मोल लिखा था हमने 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को हैंडल करूं तो हम लिख सकते हैं Na atoms is what? 1 मोल। तो 1 एटम में कितने मोल होंगे? 1/n 1 अपॉन Na मोल्स। moles. तो 6022 में कितने मोल्स होंगे? 1/6. 6022 into 1 upon Na, that means 6022 upon Na। तब 6022 की जगह अगर मैं x लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x, पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो कैन वी से दैट, फिर से हमने अभी एलिमेंट के लिए पूछा है, फॉर एलिमेंट नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या लिखिएगा? Na। Na और इन प्लेस ऑफ Na आप क्या लिख सकते हैं? 6.0 उतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी सॉल्विंग के टाइम पे। एक मिनट रुकना बेटा, कॉल आपके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट अपॉन Na कर दिया। इन जनरल क्या लिखोगे बताओ फिर से? number of particles or entities upon Na हाँ, फॉर एनी स्पीशीज number of moles will be number of particles or entities upon Na। सिर्फ यही नहीं, you can also write one more formula, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। मास इक्वल टू क्या होगा? number of moles into molar mass मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। यहाँ भी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। क्लियर है? यहाँ तक किसी को yes तकलीफ जरा सा भी? कुछ पूछना है यहाँ तक बताइए। नहीं सर।
हाँ सर। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछेंगे तो हम क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे, यस सर। है ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर बता दिया आपने 6022। तो कैन आई से डायरेक्टली 6022 का क्या रिजल्ट आएगा? मास ऑफ 6022 एटम्स। आज की क्लास का सबसे बड़ा लेसन देखो ये है कि क्वेश्चन में कोई भी डेटा क्यों ना दिया हुआ हो, सबसे पहले आप मोल्स निकाल लो बिना कुछ किए हुए। कोई भी डेटा क्यों नहीं दिया हो, अब क्या निकाल लो? मोल्स निकाल लो। तो 6022 एटम्स दिया हुआ है, मोल्स कितने होंगे बताइए? अच्छा हमने ये गलत किया बेटा, यहाँ हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन एटम्स। इसलिए वो जो आपने आंसर कहा वो सही तो हो गया, बस वो कार्बन के रेस्पेक्ट में सही हो गया, पर वो किसी के लिए भी पूछ सकते थे हम। तो मोल्स कितने होंगे? 6022 अपॉन Na, ये मोल्स हो गया। तो मास कितना होगा? 6022 अपॉन Na इंटू क्या होता है? मोलर मास 12। इंटू 12। सो दिस इज द आंसर। सेकंड का आंसर क्या होगा? 6022 अपॉन Na। इसका आंसर क्या होगा? 0.24 अपॉन 12। तो छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ लिया हमने। आज भी आप लोग का सेशन है? यस सर, 6:15 को है। या सर मीटिंग है नितिन सर। ओके। इसको भी क्या कर लेते हैं, बॉक्स में डाल लेते हैं। तो आप लोग तो ऑलरेडी इसी में एडमिटेड हो ना, इंटीग्रेटेड में एडमिटेड हो? या सर। यस तो फिर आप लोग का क्यों चल रहा है सेशन? सर उन लोग ने कंपलसरी बताया नितिन सर ने। ओ, ठीक, एंजॉय है और क्या, क्या डिफिकल्टी है? स्क्वायर बनाने का मेथड बड़ा बढ़िया है। ठीक है, यहाँ भी आप वही कमेंट कर लीजिए, नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे मास है ना, मास ऑफ an element, mass of an element is nothing but number of moles into molar mass
of element. Always they will ask for you have to solve in gram. ये ग्राम में आएगा तो ये भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा. यहाँ भी number of atoms of element will be number of moles क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स into किसका मोल्स, उस डेफिनेटली एलिमेंट का. सब हो गया. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज आइसोटोप, बोलो. एटम्स ऑफ same element having atoms of an element having same different atomic mass. atomic number और different क्या होता है, बोलो. Atomic mass. Atomic mass. एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर बोलिए, ठीक है ना, मास नंबर. नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z. क्या होता है एटॉमिक नंबर, बताइए. Number of protons or number of electrons. ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इन वन एटम always valid. It is also equal to जो आपने कहा अभी, electrons in one atom if neutral. न्यूट्रल होगा तभी हम बात करते हैं. मास नंबर Number of protons plus number of neutrons. number of nucleons in one atom और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, number of protons Number and of protons plus neutrons. दस. अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ electrons, और gain of बोलो गेन ऑफ, protons, नहीं, इट इज ओनली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज नेवर बेस्ड ऑन व्हाट प्रोटॉन. तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, gain of Gain electrons. of electrons. आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए. No, sir. ठीक है. अगर मैं आपसे एक एलिमेंट देता हूँ, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ले लीजिए.
कैल्शियम में कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca20 and 40, ठीक, Ca20 and 40। अब देखना क्या क्या आप इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। ये क्या होता है? Atomic Z। number. atomic number, atomic number, ये क्या होता है? Atomic mass number. एटॉमिक मास नंबर नहीं होता बेटा कुछ, मास नंबर, ठीक है। क्या होता है ये? मास नंबर। जनरली मास नंबर किसी पर्टिकुलर एटम का, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर एटम का वो एटॉमिक मास कंसिडर आप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मास नंबर इज अ नंबर। मास नंबर क्या होती है? नंबर होती है, मतलब इंटीजर होती है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? जो नंबर है वो क्या है? Number of protons. तो इंटीजर है। मास नंबर क्या है? इंटीजर है। समझ गए? तो मास नंबर भी क्या हो गया? इंटीजर हो गया आपका डेफिनेटली, कैल्शियम का 40। और 40 एटॉमिक मास नहीं होता। आप गूगल करो या अपने फोन पे देखो, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, चेक करो। चेक करिए, sir 40, 40 नहीं होगा, देखो ठीक से। Sir, 40.078. 40.078 वो क्यों आया बताइए तो जरा। 40 होना चाहिए था मास नंबर, पर 40.08 क्यों आया? Sir, थोड़ा Basic- error है. बोलो। Error रहेगा उसमें. नहीं, एरर क्यों रहेगा? सर न्यूट्रॉन्स का वेट पॉइंट मिलेगा। क्योंकि 40 जो हम लोग मास नंबर कहते हैं वो नंबर है, और जब आप एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम सबका मास निकालते हैं टोटल, और वो फिर डेसिमल में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन का भी डेसिमल में आएगा, सबका डेसिमल में आएगा, फिर अप्रोक्सीमेट हम क्या कह देते हैं कि मास, समझने की कोशिश करिए। मास नंबर नंबर है, पर एटॉमिक मास नंबर नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास मास नंबर है। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yeah, sir. तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं इसको। जैसे अगर मैं कनेक्ट करूं इसको, देखिएगा ये हमारा क्या है बताइए। Mass number. मास नंबर, अच्छा, एक पॉइंट और लिखना भूल गया, रुको। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम क्या होगा? ए माइनस, या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम। इट इज नथिंग बट मास नंबर माइनस, एटॉमिक नंबर। ये सब आपको आता है? नहीं आता तो वी आर लर्निंग, बट जनरली पता रहता है बच्चों को। नहीं पता है तो वी आर ऑलरेडी स्टडिंग एटॉमिक नंबर। ये हमने बता दिया आपको। ऊपर वाला नंबर क्या है? मास नंबर है। तो मास, अगर आपको ऊपर वाला नंबर मास नंबर पता है, जैसे मैंने कहा कि मास नंबर ही अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? एटॉमिक मास होती है, ठीक है ना। आई विल टेल यू वेयर विल बी फेसिंग प्रॉब्लम। तो बताओ मुझे, मास ऑफ वन एटम क्या होगा? 40U। क्लियर? और कर लेते हैं क्लियर यहाँ पे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, या एटॉमिक मास लिख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या होगा? 40, ठीक। हेलो, यस सर।
Yes. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या होगा? 40. मास ऑफ वन आइटम क्या होगा? 40U हो जाएगा. समझ गए? Yes. Yes. मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्या होगा? 40. गलत. बोलो. 20. आसान को आप लोग टफ क्यों करते हैं? बताओ दिशा. We already discussed ना कि if you know the atomic mass, then you know everything. हमने कमेंट किया, स्टेटमेंट लिखा है. देखो, relative atomic mass, mass of one atom, molar mass of element, gram atomic mass, all are having what? Same value. Same values नहीं, numerical values. गलत. Same value गलत हो गया. Atomic mass, mass of one atom. देखो मैं यहाँ एक क्लैरिटी दे देता हूँ. Atomic mass atomic weight same. Relative atomic mass सेम. होता ही सेम है यहाँ, न्यूमेरिकल सेम नहीं. मतलब मास की जगह पे क्या लिख दिया हमने? वेट लिख दिया बस. सेम थिंग. ग्राम atomic mass ग्राम atomic weight. मतलब बेसिकली मास की जगह पे अगर वेट लिखा हुआ हो तो आप मिस ना करें, गलती ना करें. दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. लेकिन मास और वेट में डिफरेंट है. व्हाट इज डिफरेंस इन मास एंड वेट? बोलिए. व्हाट इज द डिफरेंस इन मास एंड वेट? Mass is constant, but the weight changes. Depending on the value of g, G. acceleration due to gravity. You Yes. know this. केमिस्ट्री में सब चलता है. केमिस्ट्री में कुछ भी बोलते हैं सब ठीक ही है सर. सब बढ़िया है. ठीक है. अब आते हैं इस पे जो मैं पढ़ रहे थे. तो बेसिकली मास ऑफ मोलर मास ऑफ कैल्शियम सेम है और मोलर मास ऑफ कैल्शियम सेम है. कैन वी से दैट mass of 1 mole atoms of कैल्शियम भी क्या होगा? 40 ग्राम. मास ऑफ Na atoms of कैल्शियम भी क्या होगा? 40 grams. 40. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट. ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट. रिलेटिव एटॉमिक मास कैल्शियम क्या होगा? 40. सब 40 के बराबर हो गया. और मास नंबर क्या है? 40. मास नंबर अप्रोक्सीमेट नहीं है.
क्योंकि मास नंबर नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से अब कभी न्यूट्रॉन कभी आधा हो सकता है क्या? मेरे पास 1/3 न्यूट्रॉन है, स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। गलत। 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 मेरे पास 1/4 इलेक्ट्रॉन है, सब गलत सलत स्टेटमेंट है। बस जब नंबर की बात करते हैं, नंबर को जब मास में कन्वर्ट करोगे आप, तो जाके आपका वो डेसिमल में आ जाएगा। डन, क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखिए, फॉर कैल्शियम तो लिख दिया हमने, फॉर क्लोरीन कर लेते हैं। फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितनी होती है? सबको पता है? 35.5। क्या ये मास नंबर है? नो सर। नो सर। नहीं, नहीं है। तो कैसे है 35.5? क्या चक्कर है इसका? सर सर उसका 35 + 37 आइसोटोप। तो बेसिकली जो 35.5 है वो एवरेज से निकलता है। इट इज नथिंग बट उसके एवरेज। आइसोटोप्स का एवरेज मास। हाँ, एवरेज एटॉमिक मास है ये, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का मतलब वो कभी भी मास नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन exists as two isotopes, Cl35 और Cl37। अब ये 35-37 क्या है? मास नंबर है। और ये अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास क्या होगा इन दोनों क्लोरीन का? बिकॉज द बोथ द क्लोरीन आर डिफरेंट। ये दोनों क्लोरीन क्या है? आइसोटोप। डिफरेंट। हाँ, तो डिफरेंट क्लोरीन आइटम्स हैं, दे आर नॉट सेम, पर हमेशा दोनों साथ मिलते हैं। तो जो भी आप क्लोरीन आप अज्यूम करते हो, कंज्यूम करते हो अपने डेली लाइफ में, उसमें दोनों क्लोरीन साथ रहते हैं, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल है। कुणाल, यस सर। आप लेट ज्वाइन किए आज, यस सर। क्यों भूल गए थे क्या? हाँ सर, मैं वो दूसरा होमवर्क कर रहा था, मुझे याद ही नहीं। मंडे को लेक्चर होते नहीं ना हमारे। हम जान रहे हैं ना, वही गड़बड़ है, क्लास लगाई क्यों रहे हैं? क्लोरीन एग्जिस्ट एज टू आइसोटोप Cl35 Cl37, डिफरेंट क्लोरीन एटम्स है ये। तो इनका अगर मैं इस Cl का एटॉमिक मास पूछूं तो इट इज अप्रोक्स, ये भी 35 नहीं होगा। समझ गए कि नहीं बताओ? वो 35 नहीं होगा, 35 पॉइंट समथिंग होगा। और लेकिन अप्रोक्सीमेटली 35 बोल सकते हैं। सेकंड वाले Cl का 37 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। दोनों की परसेंटेज अलग अलग होती है। तो परसेंटेज अब अलग अलग होगी। जैसे मान लो 10 बच्चे को मार्क्स क्लास में 50 है और 20 बच्चों का मार्क्स मान लो 48 है, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे जरा बताओ तो क्लास का? 10 बच्चों का मार्क्स 20 into 50 plus 20 into 48 upon 30। 10 लिखा, 10 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 48, टोटल upon मार्क्स निकाल 30। लिया। टोटल मार्क्स निकाल लिया और डिवाइड कर देंगे किससे? 30 से। 30 से। तो वेटेड एवरेज कहते हैं, वेटेड एवरेज, एवरेज कहते हैं सिंपल। तो अगर मैं इसका परसेंटेज दे दूं, इसका परसेंटेज दे दूं, दोनों का नंबर ऑफ एटम बता, मैं बोलूं नेचर में अगर हमने ये 10 एटम निकाले मार्क अपने नेचर से, या 200 आइटम्स निकाले मान लीजिए, और 200 क्लोरीन आइटम्स निकाला, तो उसमें कुछ आइटम Cl35 का निकला, कुछ 37 का निकला, तो एवरेज निकाल लोगे ना? हेलो? हाँ सर। वो परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हो, मोल्स के टर्म में निकाल सकते हो, फ्रैक्शन के टर्म में निकाल सकते हो, किसी के टर्म में निकाल सकते हो। वो जाकर एटॉमिक मास होता है। तो वॉट एवर एक बच्चा गया फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है?
आज कोई और क्लास थी क्या? नहीं सर। नहीं सर, सिर्फ आपका। तो जो भी एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं वो सभी एवरेज होता है, वो मास नंबर नहीं हो सकता। अप्रोक्सीमेट मास नंबर हम बोल सकते हैं। मास नंबर किसका होता है? आइसोटोप का होता है। मास नंबर एलिमेंट का कभी नहीं होता। समझ गए? मास नंबर किसका होता है? मास नंबर आइसोटोप। हमेशा आइसोटोप्स का होता है, इंडिविजुअल आइसोटोप्स का होता है। एलिमेंट का मास नंबर नहीं होता। एलिमेंट का मास नंबर तभी होगा जब उसका एक ही आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा, दो आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो एक ही आइसोटोपिक फॉर्म में रहेगा। समझ में आया? याद रखेंगे इसको। यस सर। ठीक है, यहाँ डन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ओके, चलिए अब मैं कोई और एलिमेंट लिखता हूँ, सोडियम 23। तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? पर क्वेश्चन के सॉल्विंग में उसको आप मास नंबर अज्यूम कर सकते हैं, एटॉमिक मास अज्यूम कर सकते हैं। 23। 23। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम? 23 23 ठीक है। ग्राम्स। अभी grams. थोड़ी एक बात और गौर करना, मास नंबर में, मास नंबर उसका नाम ही मास नंबर है, मतलब मास विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ गए? Yes, sir. यस सर। मास नंबर विल बी डिसाइडेड बाय, एक मिनट, जिसको इस तरह लिख सकते हैं, ओके। मास डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। mass of electron is negligible compared to mass of proton और mass of न्यूट्रॉन। अगर मैं कहूं कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्या है बताइए? 40 ग्राम। ग्राम। तो बताओ मोलर मास ऑफ कैल्शियम 2+ भी क्या होगा? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम। मास ऑफ 1 कैल्शियम 2+ आयन क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? 40 40 डार्कनेस। 40 यू ना, Yes, sir. 40. गड़बड़ नहीं करना बच्चा। और ये मास ऑफ 1 कैल्शियम आइटम क्या होगा? 40 यू। 40 क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं कोई और एलिमेंट की बात करूं, अनायन कैटायन की बात करूं, अनायन की बात करूं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को रखो ना रखो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब दिमाग में रखिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर एलिमेंट्स। अब ये कोई नया चीज है, कुछ नहीं है, बस फालतू गिरी है केमिस्ट्री की। 1 ग्राम मोल और 1 ग्राम एटम बोथ आर सेम थिंग। 1 ग्राम एटॉमिक वेट सेम थिंग। मास उनकी जो वैल्यू होती है, मतलब 1 ग्राम मोल की वैल्यू, 1 ग्राम एटम की वैल्यू होती है मास ऑफ एनी एटम्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट? बोलिए। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, वो तो हम जानते ही है। 1 ग्राम एटॉमिक मास क्या होती है? यही होती है ना।
है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए तो जो लर्निंग वाली पार्ट है इस पूरे पैराग्राफ जो पूरा डिस्कशन है इसका ये है, यहाँ पे देखिए कितना है ये 1 मोल, यहाँ पे कितना है 1 मोल ही है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2. यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 Na. मतलब नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. Same. सेम होती है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने दें आपको, पर नंबर ऑफ मोल्स तो किसी का भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स तो किसी भी स्पीशीज का निकाल सकते हो ना, Yes. पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए कह रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? Number of moles. क्लियरली बोलो। Mass of नहीं number of moles Number of Right. moles Hey. of element. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, अब समझ में आया आपको? ऊपर हेडिंग एलिमेंट्स है, तो 1 ग्राम मोल सबके लिए यूज हो सकता है, बट 1 ग्राम एटम किसके लिए यूज होगा? 1 mole atom of element. 1 मोल एटम्स ऑफ एलिमेंट के लिए यूज होगा। वेरी गुड। एनी डाउट? No. No, sir. तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोले एलिमेंट का, या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ग्राम एटम्स निकालने के लिए बोले, या नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए बोले, सबकी वैल्यू क्या होगी न्यूमेरिकली? Same. ये सब केमिस्ट्री की फालतूगिरी है जो आप टफ मत मानिए, सब आसान होती है। मैंने बड़े सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑल हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज x फॉर एन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, देन डन 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 डन। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब मुझे बताइए कंपाउंड के लिए सेम चीज पढ़ डालिए मेरे साथ। और कंपाउंड फर्स्ट क्या लिखूं? 1 gram mole. 1 ग्राम मोल। नेक्स्ट वाला सब 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 क्लास में है 1 कि नहीं? सब gram क्लास। molecule. तो जब मैं कहता हूँ सब, तो सब पढ़ डालिए, थोड़ा क्या समझने दीजिए क्लास का। 1 gram element. पहला 1 ग्राम मोल होगा, सेकंड क्या होगा? 1 gram 1 gram element. molecule. 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। थर्ड क्या होगा? 1 gram molecular 1 gram molecular mass. 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास पढ़ा नहीं है, पर पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट क्या है? मास ऑफ mass of Mass in molecules. atoms of compound. Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बड़े आराम से समझ के बोलना है। मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इक्वल टू क्या होगा? 1 gram Mass molecule. of 1 Mass of टफ नहीं बोलना है कुछ, जो है सामने वही बोलना है। इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ molecule of Compound. compound. कंपाउंड इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास ही होगा। कोई डाउट? no, No, sir. ये आपका काम रहा पूरा फिलअप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अभी फॉर रेडिकल्स बता पाएंगे क्या आप लोग? Yes, sir. बताइए। तो पहले 1 gram mole equal to 1 gram ions. Ions. आप equal लोग to- कॉन्फिडेंस में बोल लेंगे ना, तो मेरी क्या जरूरत है? हर टॉपिक पढ़ाने के बाद आप टीचर हैं। बताइए 1 ग्राम आयन हो गया। अब 1 ग्राम एटॉमिक मास तो नहीं होगा वहां पे। Ionic mass. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 1 ग्राम मोल होगा, 1 ग्राम आयन होगा, तो 1 ग्राम मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, या 1 ग्राम फॉर्मूला मास बोल सकते हैं। समझ गए? जो फॉर्मूला होगा उसका, बिकॉज सभी चीजों का मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलता। तो जब मॉलिक्यूल नहीं मिलता तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला वेट बोल देते हैं। अंडरस्टूड? Yes. Yeah. Yes, sir. जैसे मैं बताऊं आपको, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आप नमक यूज करते हैं घर में, NaCl. जबकि ये गलत है। हम लोग सॉल्विंग में गलतियां नहीं करेंगे, नहीं है मेरा गलत होगा, पर ये स्टेटमेंट ही गलत है। NaCl का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता ही नहीं है। NaCl इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि नमक का या सॉल्ट का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता ही नहीं है, बिकॉज मॉलिक्यूल ही नहीं होता, बिकॉज कंटिन्यूअस इनफाइनाइट नेटवर्क होती है। Na+ के बगल में Cl- के बगल में Na+, के बगल में Cl-। बट अगर आप H2O बोलोगे तो H2O ऐसा एग्जिस्ट करता है सेपरेट। तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, पर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं हुआ। इसके बगल में फिर Na+,
चारों तरफ फैला हुआ है, इनफाइनाइट नेटवर्क है. सो देयर इज नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, सोडियम क्लोराइड. बट हम लोग पढ़ लेंगे टाइम पे बोल लेते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको फॉर्मूला मास बोलना चाहिए, उसको फॉर्मूला बोलना चाहिए. सर समझ में आई बात? तो फॉर रेडिकल्स आप क्या बोलोगे? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे चलेगा, कोई गलत नहीं है, या 1 ग्राम फॉर्मूला वेट ही बोलेंगे चलेगा. बट मेन था यहाँ पे फर्स्ट दोनों का. फर्स्ट दोनों में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बताइए? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन. कंपाउंड के लिए 1 ग्राम 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल. बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वही इंपॉर्टेंट है. आपसे नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे या नंबर ऑफ आयंस बोलेंगे, सेम ही बात है. नंबर ऑफ ग्राम आयंस बोलेंगे, आयंस नहीं, नंबर ऑफ ग्राम आयंस. डन. आगे का काम बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर. कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग. ओरली भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 6:15 को छोड़ना है वो क्लास. क्योंकि देखते हैं और कितने दिन बचा है सर. आज हो गया 26. कब बताया था आपने कि कब बताया था बेटा आप लोगों ने? 21 अगस्त. 21 अगस्त. आई थिंक बाद में नहीं डाला मैंने. ठीक है, एक दिन और होगा, 30 जुलाई, फ्राइडे आई गेस. हाँ फ्राइडे. फर्स्ट का आंसर बताओ दिशा, फटफट बोलो. 3 ग्राम एटम्स का मतलब यू होना चाहिए, फटाफट सॉल्व. 3 ग्राम एटम्स का मतलब, हेलो दिशा हो? हाँ सर. हाँ बोलो फटाफट. 3 ग्राम एटम्स का मतलब 3 मोल्स. यस सर. RAM दिया हुआ है 32, तो मोलर मास क्या होगा? 32. 32 ग्राम है ना? Yes sir. तो मास क्या होगा? मोल्स इनटू 96 हो गया आंसर. 36 grams. क्वेश्चन 2, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन. अच्छा ग्राम एटम्स पूछा है तो बेसिकली क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स. 144 ग्राम दिया हुआ है, तो मास अपॉन क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मोलर मास. मोलर मास. हो गया खत्म सॉल्व. अगर RAM पता है तो मास ऑफ 1 आइटम पता है, मोलर मास पता है, एटॉमिक मास पता है, सब कुछ पता है, और फॉर्मूला बेसिक का यूज कर लेंगे. थर्ड का बताइए आंसर. Sir, 12 grams. बोलो. 12 grams. सबको आया क्या 12 ग्राम? Yes. बाकी की चीजों की तो जरूरत ही नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है? तो बाकी इंफॉर्मेशन की कौन सी इन्फॉर्म जरूरत नहीं है? सब वो दिया है, रेशियो और वो सब, क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि पता है ना सर 12. ये तो यही गड़बड़ है. इसी को तो आज तुम लर्निंग्स करोगे. जो तुम्हें पता है जरूरी आंसर में वही आए. आ जाए तो अलग बात है, और हो सकता है आपको क्वेश्चन से निकालना हो सकता है आप किसी दूसरे प्लेनेट में हो, वहां पे कुछ गड़बड़ होगा, एटॉमिक मास. क्वेश्चन से निकालिए बेटा. यू आर नॉट यूजिंग हेयर. आपसे ये पूछा है कि मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है? पूछा है? बोलो.
ये नहीं पूछा है, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, उसको अप्लाई करिए। कुछ गलत नहीं है जो आप आंसर कह रहे हो। 12 आ रहा है करके। 12 आ रहा है, सही है ना, गलत क्या है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। 12 याद है, याद होना और क्वेश्चन का डेटा यूज करके निकालना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डेसिमल का फर्क पड़ जाएगा तो आप गलत करके आ जाएंगे। समझ गए? 12 आंसर सही है, पर ये नहीं कि क्वेश्चन के थ्रू नहीं करना था, क्वेश्चन के थ्रू करना था। अच्छा मुझे बताओ, मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108। Yes, sir. Yes, तो मास ऑफ 1 सिल्वर आइटम क्या होगा? 108. गलत। 108 U. 108 यू। ठीक। अब रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सिल्वर आइटम, मास ऑफ अ सिल्वर आइटम, मास ऑफ अ सिल्वर आइटम अपॉन मास ऑफ अ कार्बन आइटम क्या हो गया? 9/9। अब मास ऑफ अ सिल्वर आइटम क्या है? 108. 108 यू। और यहाँ पे क्या है? x मान लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12। 12 आया। अगर x 12 है, अगर x 12 है तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 12 grams. 12 ग्राम। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, 12 मत बोला करिए, 12 ग्राम। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, इतना ही हो पाया बेटा। आगे और भी इंफॉर्मेशन थे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। इतना अपडेट करिएगा नोट्स में, Yes, इतना sir. पेज नंबर 10 तक, Yes, sir. पेज नंबर 10 तक अपडेट करिएगा। ठीक है? हेलो? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए, Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, बाय sir. बाय। Yes, sir.